After this autoimmune disease, we have to read in detail about the organ transplantation. Organ transplantation. So, organ transplantation means you, whenever there is a damage in the tissues of the certain organ, सारे organ transplantate नहीं होते हैं. The first organ transplantation in India was taken place in 1971 in the Vellore, that is your most famous college of the Vellore, वहाँ पर हुआ था. It's the kidney transplantation. Yes, you can transplant the kidney, liver, heart भी कर सकते हैं, but not all. Bone marrow transplantation भी होता है. But what if? So basically, when there is a wear and tear in certain organ, they started not working properly, then there is a need to transplant the organ. For this, you need a donor and the recipient. The donor and the recipient, there are certain things you have to consider in order to undergo the organ transplantation. So what are the various things that you have to consider? First is your tissue matching. Blood grouping. Now, this organ transplantation are of 4 different types. इससे भी क्वेश्चंस आए हैं आपके नीट के एग्जामिनेशन में. Your organ transplantation can be of 4 different types. क्या क्या 4 different types का हमारा organ transplantation हो सकता है? ऑटोग्राफ्ट हो सकता है, आइसोग्राफ्ट हो सकता है, एलोग्राफ्ट हो सकता है और जेनोग्राफ्ट हो सकता है. You have to understand all these 4 types of organ transplantation. 4 types of organ transplantation. First is your autograft. Second is your, sorry, अभी मैंने क्या बताया था? ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जेनोग्राफ्ट एंड आइसोग्राफ्ट. तो ऑटोग्राफ्ट के बाद पहले मुझे आइसोग्राफ्ट लिखना चाहिए क्योंकि हम एक वे में जाएंगे. इट्स आइसोग्राफ्ट, then comes your allograft, and then comes your xenograft. The simplest example of the autograft is the grafting from your own body cells. For example, skin. स्किन अगर हमें कहीं पर प्लास्टिक सर्जरी करके स्किन इम्प्लांट करना है, स्किन ट्रांसप्लांट करना है, तो व्हाट वी विल डू, वी टेक आवर बॉडी ओन सेल्स, दैट इज द स्किन सेल. हम अगर हम अपने बॉडी के खुद के सेल को ही लेते हैं, दैट इज योर ऑटोग्राफ्ट. बॉडीज ओन cell. Isograft is the grafting between the twins. Twins, same twin brother and sister, sister and brother, brother brother, sister sister, but twins होने चाहिए. That means they have a similar genetic makeup. Mind it. Isograft. Isograft का मतलब होता है it is a transplantation between a twin brother or sister. Why? Because the donor and the recipients, they are genetically identical. So your isograft, it's the graft between twins, because they are genetically identical. Okay, allograft. Now what is allograft? Allograft क्या होता है? हमने ऑटो पढ़ लिया, आइसो पढ़ लिया, एलो पढ़ लिया.
Allo means individual of the same species. For example, अगर कोई twin brother and sisters नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, हम घर के और भी जो भी हमारे relatives हैं, घर के लोग हैं, उनको भी tissue matching करके, blood group matching करके हम देखते हैं कि is they are the suitable donor for the recipient or not. So whenever there is grafting of the transplantation of the organ between individuals of the same species, that is your allograft. Between individuals of same species. Okay, and xenograft. Xenograft is basically being found in the animals. It is transplantation between animals of different species. It is transplantation between animals of different species. यहाँ हमने क्या लिखा? Same species लिखा. But now what I am telling कि in the xenograft, it's a transplantation between animals of different species. Okay, so when the transplantation takes place, that means in the donor body, from the donor we take the graft. Graft means a piece or a small part of the organ or the complete organ that is being transplanted into the recipient body. So your recipient body immune system, they have a capability to distinguish between self and non-self. तो वो जो दूसरे ग्राफ्ट जो है उसको कंसिडर नहीं कर ले नॉन सेल्फ के जैसा और उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक्ट करने लगे, इसकी वजह से द पेशेंट, द रेसिपिएंट विल बी गिवन द इम्यूनोसप्रेसेंट थ्रू आउट देयर लाइफ. यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द टाइप ऑफ द इम्यून सिस्टम which is related to the organ transplantation is only your cell mediated immune response. ये भी क्वेश्चन आता है, नीट में क्वेश्चंस आए हैं कि कौन सा इम्यून सिस्टम है जो इफेक्ट करता है किसको, हमारे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को. इट्स द सेलुलर इम्यून सिस्टम. तो जो ये हमारा इम्यून सिस्टम है उसका सिर्फ सेलुलर इम्यून सिस्टम जो है उसको हमें सप्रेस करने की जरूरत होती है, बट आवर ह्यूमरल इम्यून सिस्टम कैन फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन. बट हाउएवर योर इम्यूनिटी इज लोअर एज कंपेयर टू द नॉर्मल पीपल, क्योंकि वहां पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी वर्क कर रहा है एज वेल एज ह्यूमरल इम्यूनिटी भी वर्क कर रहा है. मैम आपकी वीडियो पॉज हो रही है. वीडियो पॉज हो रही है, जस्ट अ मिनट. As I am saying कि ये जो हमारा organ transplantation है, it's only be immunosuppressant क्यों चाहिए? To suppress the only cellular cell mediated immunity को suppress करने के लिए चाहिए, but your humoral immune system is not being affected. ये बहुत important question है और ये question बहुत बार, आज आपको लग रहा होगा मैम ऐसे ही बोली, आज एक बार चेक करना कि ये क्वेश्चन आया है कि नहीं, कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हमारे किस इम्यून सिस्टम को हैम्पर करता है और जिसके लिए हमें इम्यूनोसप्रेसेंट चाहिए. इट्स योर cell mediated immunity. This is very important. But your humoral immunity is not being hampered. Humoral immune system, अगर तुम्हें याद होगा antibodies production, तो वो hamper नहीं होता है, वो चलता है, but still the body of the patient becomes prone to the infection. They are susceptible to the infection. क्योंकि अगर बहुत सारी चीजें एक साथ वर्क कर रही है और उसमें से कुछ चीजें हट गई तो पावर इज बीइंग रिड्यूस, तो थोड़ा वो प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाता है. इसलिए थ्रू आउट द लाइफ दे हैव टू टेक द एक्स्ट्रा केयर इन ऑर्डर टू बी अ हेल्दी, इन ऑर्डर टू लीड अ हेल्दी लाइफ. Immunosuppressant drugs में जो most common drug है that is your cyclosporin, and that is being taken from a fungus Trichoderma. उससे हम extract करते हैं, that is your cyclosporin.
साइक्लोस्पोरिन। ओके, ये साइक्लोस्पोरिन क्या करता है, ये हमारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को इसको रिड्यूस करना है ताकि ये सेल्फ और दूसरा वो जो हमारे सेल्स इम्प्लांट हुए हैं उसको दूसरे सेल नहीं कंसिडर कर सके। तो व्हाट इट एक्चुअली डू, इट डिस्ट्रॉयज टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। जो टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है उसको जो ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है दैट इज योर साइक्लोस्पोरिन, the most common immunosuppressant drug that is being used, most common immunosuppressant drug। ये ड्रग सिर्फ हमें इफेक्ट करता है, क्या है नाम, इट्स द साइक्लोस्पोरिन। I will share the image of the board. It's the cyclosporin. Cyclosporin जो है, let me change the net, मैं दूसरा net use करती हूँ तो शायद problem नहीं होगी। Yes. So cyclosporin. What does the cyclosporin do? It destroys T cells. But they are not harming the humoral immune response. ये डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारे टी सेल्स को, डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी कि टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को हैम्पर कर रहा है, दैट इज योर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इट डिस्ट्रॉयज टी सेल्स एंड इफेक्टिंग द सीएमआई, दैट इज योर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, while spares the humoral, that is antibody production. So be clear in this aspect. इससे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये सिर्फ सीएमआई को इफेक्ट कर रहा है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को हैम्पर कर रहा है, बट ह्यूमरल, दैट इज एंटीबॉडी प्रोडक्शन, बट ह्यूमरल एंटीबॉडी प्रोडक्शन ये वर्क करता है, इज वर्किंग, इट वर्क्स। ये इसको स्पेयर करता है, साइक्लोस्पेरिन इसको स्पेयर कर देता है, इसको छोड़ देता है कि भाई कुछ तो हो जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम। नाउ द बोर्ड इज क्लियर, इज द बोर्ड क्लियर नाउ? नाउ let me rub the board and then I will start with the immunodeficiency disease। ये ऑटो इम्यून में भी कंसिडर कर सकते हो कि ये अपने इम्यून सिस्टम जो है वो डिफेक्टिव हो गया है, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है। बट ऑटो इम्यून डिजीजेस के अलावा हमारे बॉडी में और भी इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज भी होते हैं। इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज एज द नेम इटसेल्फ सेज कि it's the deficiency of the immune system and they can be of two types: primary immunodeficiency disease and the secondary immunodeficiency disease. Listen to me first, then I will write. Primary immunodeficiency disease में क्या होता है? It's an inborn disease. Inborn disease, that means it's basically being found in the infants. Their body is not capable of producing T and B cells. Birth से होता है, from birth onwards होते हैं, and the patient or the infants, it's basically seen in the infants। जो infants होते हैं वो नहीं बना सकते, क्या नहीं बना पाते वो, उनका जो बॉडी होता है they are not capable of forming the B cells and the T cells। बट ये हम सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीजेस की बात करें, दैट वी अक्वायर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। जब भी हम बॉर्न हो जाते हैं उसके बाद ये लाइफ टाइम में कभी भी आपको ये डिजीज हो सकती है। एंड द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी immunodeficiency disease is nothing but the AIDS, and you all must be knowing about the AIDS। What is the date on which the world's AIDS Day is being celebrated? On which date? Yes? Anyone? नहीं पता, हमने नहीं पता, हमने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। कौन बताएगा? ठीक है, let me rub the board and then I will start। Very good। Divide this। Immunodeficiency diseases।
They are basically of two types. Immunodeficiency, name itself explains that it's the deficiency of your immune system. It's the where the defense mechanism, immune system क्या है, हमारे body का defense mechanism है. तो when the defense mechanism of the body are weakened, जब भी हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म वीक हो जाता है, हमारे गवर्नमेंट का, हमारे कंट्री का डिफेंस सिस्टम वीक हो जाता है, so anyone can attack us from anywhere, so we have to be strong enough. So it's that the condition when the immune system of your body is being weakened, then you become prone to many microbial infection, and it leads to immunodeficiency diseases. So basically what is immunodeficiency disease? It's the weakening of the immune system. Your immune system is being weakened. So, more prone to infection. So, your immunodeficiency disease is broadly classified into two. Broadly, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. One is your primary immunodeficiency disease, and the second one is your secondary immunodeficiency. As I already explained that कि जो हमारा primary immunodeficiency disease है, it's being mostly found in the infants. That means it's an inborn. This is an inborn deficiency. Inborn. Inborn होगा तो हम इसके लिए एक और क्या word use कर सकते हैं? First day पढ़ा था हमने. अगर ये Innate. Yes. It's a genetic disorder. It's a congenital disease. तो yes, your primary immunodeficiency disease ये birth से exist होता है, and a person is without T and B cells. जो ये cell हैं, जो ये fighting cells हैं, यही उनके पास नहीं होता है. Person is without T and B cells. इस तरह के डिजीज को हम बोलते हैं SCID, Severe Combined Immunodeficiency. SCID इसका एग्जाम्पल है. But when we will talk about the secondary immunodeficiency diseases, तो अब various factors are being considered in it. बहुत सारे, क्योंकि ये after birth है, after birth आ रहा है, तो बहुत सारे factors इसमें हो सकते हैं. Maybe it's due to the malnutrition, maybe due to the blood transfusion. मैम वीकनिंग के आगे क्या लिखा है? वीकनिंग के आगे बच्चा कुछ नहीं है. वीकनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन. वीकनिंग. ओके. सो in case of secondary immunodeficiency, as we encounter it after birth, तो there are many reasons. malnutrition हो सकता है, infection हो सकता है, malignancy हो सकती है. There are many reasons. drugs की वजह से हो सकता है, तो many reasons हो सकता है. fluids की वजह से हो सकता है. So secondary immune deficiency encountered after birth. Many reasons are responsible, many factors are there, ranging from malnutrition, malignancy, and many more. बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसका रीजन हो सकता है. रेंजिंग फ्रॉम योर माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, ड्रग्स भी हो सकते हैं. It leads to, and this secondary immunodeficiency system, it leads to or it damages your both immune system.
दैट मीन्स कि आपका जो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम है एज वेल एज योर नॉन सेल मीडिएटेड है, मतलब कि स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दोनों ही इम्यूनिटी की बैंड बजा देता है। दोनों ही इम्यून सिस्टम हमारे अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, इसलिए पर्सन जो है वो छोटे छोटे इन्फेक्शंस, फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड से भी खुद को बचा नहीं पाता है, प्रिजर्व प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। एंड द कॉमन कोल्ड सच अ स्मॉल थिंग जिससे हर इंसान अपने इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको रिकवर कर सकता है। इन केस ऑफ सीवियर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम वाले जो पेशेंट्स होते हैं, इन दैट केस कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन ऑल्सो लीड्स टू निमोनिया। वो बढ़ते चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। हाउ, एंड वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो this the most common example of your secondary immunodeficiency disease is your AIDS and Hodgkin's diseases। ये वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा। इट्स अ डिजीज ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। आपने पिछली क्लास में लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा था, लिम्फेटिक टिश्यूज पढ़े थे। इट्स अ काइंड ऑफ अ लिम्फोमा। लिम्फेटिक सिस्टम का, लिम्फेटिक टिश्यूज का कैंसर भी बोल सकते, इट्स अ लिम्फोमा। So basically the most common secondary immunodeficiency examples is your AIDS and Hodgkin's disease. This you also have to remember क्योंकि कहीं पे भी MCQ में हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि ये एक immunodeficiency disease है and it's a disease of the lymphatic tissues. Lymphatic tissues. So what is AIDS? You all know the full form of the AIDS. Acquired. हम इसको acquired कर रहे हैं during the lifetime. It's not inborn. Acquired immunodeficiency syndrome. Syndrome और symptoms में difference है। सिम्टम्स का मतलब होता है एक दो कुछ स्पेसिफिक चीजें हमें दिख रही है, फॉर एग्जांपल फीवर है, कोल्ड है, कफ है, तो हम बोलते हैं इट्स अ सिम्टम। syndrome, it's a cluster of symptoms, many symptoms all together, it's known as syndrome। तो जो हमारा एड्स है वो क्या है? SCID is very simple। इसमें बस आपको यही रिमेंबर करना है कि विदाउट बी एंड टी सेल्स होते हैं एंड द पेशेंट्स एंड द पर्सन और द किड्स, इन्फेंट जो होते हैं, दे आर वेरी मच प्रोन टू द इन्फेक्शन। बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं बचपन से उनको थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ तो पूरी जिंदगी ही रहता है, वो जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं, बहुत ससेप्टेबल होते हैं इन्फेक्शन से। ओके, यू कैन प्रोटेक्ट देम। आप उसको पैसिव इम्यूनाइजेशन दे सकते हो, पैसिव एंटीबॉडीज दे सकते हो। बट योर सीवियर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सीवियर कंबाइंड immunodeficiency. Severe combined immunodeficiency. Okay, now AIDS. AIDS का full form आप सबको पता है। What is AIDS का full form? You all know. And AIDS is also, it's a disorder. It's also a disorder of cell-mediated immune system of the body. अगर कोई पूछे कि आप AIDS जो है वो कौन से सिस्टम को इफेक्ट करता है आपके बॉडी में, तो यस डेफिनेटली एड्स इज इफेक्टिंग द हेल्पर टी सेल्स। जो हमारे हेल्पर टी सेल्स है ना उसके अगेंस्ट एक्ट करता है। तो इट ऑल्सो इफेक्टिंग योर CMI, दैट इज योर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एड्स इज acquired immunodeficiency syndrome। acquired immunodeficiency syndrome। सिंड्रोम वर्ड्स इसलिए यूज किया है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर आपको सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए हमने वर्ड यूज करते हैं हम सिंड्रोम। ठीक है। नाउ हाउ दिस एड्स इज कॉज्ड बाय अ virus। It's a retrovirus। Am I right or wrong? HIV, you all know
Positive. Yes, ma'am. Positive organism. It's your HIV. HIV. It's a retrovirus. It's a retrovirus. अगर वायरस है तो क्या होगा? प्रोटीन कोट होगा और जेनेटिक मटेरियल होगा. तो उसके पास 2 strands of RNA होता है. 2 strands of RNA surrounded by a protein coat. एक प्रोटीन कोट नहीं होता, एक और प्रोटीन कोट होता है, लिपिड्स भी होते हैं और सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होता है. सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. इस ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है, जिस दिन हमने उसको स्टडी कर लिया, हमें वो पता चल गया, तो मे बी इन नियर फ्यूचर वी आर गोइंग टू गेट सम मेडिकेशन अगेंस्ट दिस. ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन. So, how this retrovirus enters our body and how they are going to affect the T cells. क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है CMI, तो ये T helper cell को इफेक्ट करता है. I will let you know how. These viruses, they enter the macrophages. Macrophages cell. As they have the genetic material RNA and we have the genetic material DNA. So they have to synthesize from RNA. DNA बनाना पड़ेगा with the help of reverse transcriptase. Reverse transcriptase enzyme की वजह से ये viral DNA इसने बना लिया. Now this viral DNA is being incorporated along with the host DNA. If this is the host DNA, and let me check another color chalk. And this is your viral DNA. Is the board visible? This is your viral DNA. That means कि host DNA के साथ viral DNA अभी incorporate हो गया. Now along with the host DNA अभी क्या होगा, ये viral DNA अपने बहुत सारे copies बनाएगा in the macrophages और फिर वो वहां से through the blood and the lymph started infecting the T helper cells. Now many copies of viral DNA is produced. बहुत सारे viral DNA की copies हो गए. They are now being through the blood and lymph enter the T lymphocytes. T lymphocytes में भी क्या होंगे, ये proliferate कर रहे हैं, अपने बहुत सारे copies बना रहे हैं, अपने number को increase कर रहे हैं and one by one they are going to affect a number of T cells. तो जैसे ही ये T cells को affect करना start करते हैं, symptoms are being seen. बट वो सिम्टम्स ऐसे नहीं होते, नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं. फीवर आ रहा है कंटिन्यूसली विदाउट एनी रीजन, एपेटाइट लॉस हो रहा है, वीकनेस लॉस हो रही है. तो जैसे जैसे वो टी सेल्स को इफेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है, वैसे ये HIV वायरस जो है वो हेल्पर टी सेल्स को इफेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद रेप्लिकेट कर रहा है वहां पे और बहुत सारे वायरसेस बना रहे हैं and spread along the system. बहुत सारे T helper cells को इफेक्ट करने लगा. That means your immune system has been degrading and degrading and degrading. धीरे धीरे डिग्रेड होता चला जाएगा. Saloni, I will come to that. Interferon, I will come to that. Yes, anyone wants to ask anything?
Yes. मैम जेनेटिक ट्रांसफर होता है क्या HIV? जेनेटिकली ट्रांसफर होता है क्या HIV? जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द इनबॉर्न बेबी. इन्फेक्टेड मदर से बेबी में ट्रांसफर होता है. यस, जेनेटिकली नहीं, बट तो वो बेबी को ट्रांसफर करती है, बिकॉज दिस डिजीज इज बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स ऑल्सो. बॉडी के फ्लूइड से ट्रांसमिट होता है. तो फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर, इन जो बॉर्न नहीं हुए हैं बेबी, उनमें ये इन्फेक्शन कैरी होता है. सो बेसिकली, so many T helper cells are being affected, and what happened, the infected person suffer from fever, weight loss, diarrhea. but ये normal symptoms होते हैं, तो हमें बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है. और इसका जो incubation period है, जब ये इफेक्ट शो करना स्टार्ट करते हैं ना, वो भी बहुत बड़ा है. 5 years to 10 years, it varies. तो इतना लॉन्ग डिस्टेंस में हाउ इट इफेक्ट्स, और ये सिम्टम्स इसीलिए हमें रेगुलर चेक रखना चाहिए कि ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे फीवर आ रहा है विदाउट एनी रीजन, या फिर एपेटाइट लॉस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है. तो दीज आर द मेजर symptoms, and your body becomes highly susceptible to infection. Highly susceptible. Your body is not capable of coping with the simplest common cold as well. Common cold से भी नहीं खुद को recover कर पाता है, as well as the prone to the many viral and the bacterial infection. For example, tuberculosis, mycobacterium से बहुत easily infected हो जाते हैं ऐसे person जिनके अंदर ये वायरस एंटर हो चुका है. तो व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एड्स वायरस? जस्ट अ मिनट. यस. Ma'am, mic mute. Mic mute. Sorry. So now we will talk about how they are being transmitted. ये जो HIV virus है वो कैसे transfer हो सकता है? What are the various means by which this HIV virus can enter our body? The transmission is basically to the infected blood. इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है. The another most important reason of the HIV virus transmission is through the multiple sexual contact. Yes, it's the multiple sexual contact. उससे भी ये ट्रांसफर हो सकता है. यूज ऑफ कॉन्टैमिनेटेड रेजर्स वगैरह, जहाँ से ब्लड थोड़ा बहुत आ सकता है, और अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है. द अदर इम्पॉर्टेंट की मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? सम ऑफ द पेशेंट्स दे नीड रेगुलर ट्रांसमिशन ऑफ द ब्लड्स. उनको बार बार ब्लड की जरूरत पड़ती है और उनको ब्लड देना पड़ता है. तो ऐसे लोग भी जो होते हैं वो प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं, जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है. एंड यस, फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द बेबी, फीटस में भी जा सकता है. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू भी हो सकता है. इसी वजह से टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से भी ट्रांसमिट हो सकता है. और इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए यस, ड्रग्स आर बीइंग गिवन, दिया जाता है, बट you can't protect the person from death. It's a fatal disease. Ultimately it leads to the death. You can just increase the time period. थोड़े टाइम के लिए आप उसको बचा सकते हो, बट you are not capable of giving the life to the person. बस उसके लाइफ को थोड़ा सा enhance कर सकते हो. In order to control this deadly disease, इसको कंट्रोल करने के लिए, डेडली डिजीज को कंट्रोल करने के लिए एनजीओ एज वेल एज द NACO, ये वर्ड आपके NCERT में भी मेंशन है, इसलिए आपको पता होना चाहिए.
It's the national agent to control the AIDS, awareness create करने के लिए लोगों को. तो इसी वजह से जब ये AIDS बहुत ज़्यादा spread होने लगा, so there is a program that is being run by the government, that is NACO, as well as the NGOs. They started educating the people how to prevent it. It's a saying that prevention is better than cure, or don't die of ignorance. So ignore नहीं करना है, क्योंकि हम इसको होने के बाद खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. तो don't die of ignorance. This is the slogan that is much more appropriate for this disease, that is the HIV infection. तो क्या किया गया था from now, जब ये पता चला कि it's spreading on a very high tremendous amount में spread होने लगे, तो awareness में condoms are being मतलब without money they are being given to the persons, as well as in the hospitals, as well as the private hospitals, government hospitals, it was recommended to use the sterilizable syringes, use and throw. उसको बार बार यूज नहीं करना है, क्योंकि that is also a major source of infection. पहले क्या होता था, वो निडल्स जो है वो बार बार यूज होते थे आफ्टर स्टेरिलाइजेशन करके हम उसको रीयूज करते थे, बट नहीं, अभी हम डिस्पोजेबल यूज करते हैं. वी स्टार्टेड एडुकेटिंग द पीपल अबाउट द साइड इफेक्ट्स कि दैट दिस इज नॉट अ क्यूरेबल डिजीज एंड हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस डेडली डिजीज. इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो बेसिकली 6 मंथ to 10 years होता है बच्चा, इसलिए पहचानना बहुत मुश्किल होता है. 6 मंथ से 10 years हो सकता है. तो धीरे धीरे ये आपके बॉडी को इन्फेक्ट करता चला जाता है, बट कोई ऐसे मेजर सिम्टम्स नहीं दिखते, इसलिए वी कांट रिकॉग्नाइज द डिजीज एट एन अर्ली स्टेज. ठीक है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड हियर यू कांट डाई ऑफ इग्नोरेंस. इसलिए ये सारे प्रोग्राम्स रन किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, एंड नाउ इट्स अंडर कंट्रोल. बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है, लोगों को पता है. सो अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, यू ऑल आर फ्यूचर डॉक्टर्स, तो आप किसी को भी ऐसे सच देख के नहीं बता सकते कि इसको क्या प्रॉब्लम होगी. वी जस्ट आस्क देम व्हाट्स द प्रॉब्लम, आपको क्या फील हो रहा है जो आप हमारे पास आए हो. तो दे यूज्ड टू से समथिंग कि मेरे को स्टमक पेन है, या फिर मेरे को डेली फीवर आ जाता है, या फिर मेरे को वॉमिटिंग होती है, एनीथिंग. बहुत सारे सिम्टम्स है, वो सारी चीजें हम डॉक्टर को बताते हैं. तो डॉक्टर फर्स्ट सिम्टम्स में हमें कंफर्मेटरी नहीं बता सकते हैं कि दैट यस यू आर going through the this and that diseases. You have to go for the confirmatory test. Yes, if the doctor feels कि फिजिकल फील हो रहा है उसको देख के कि नहीं मुझे ये टेस्ट कराना चाहिए, मे बी कि ये पर्सन को ये वाला डिजीज हो सकता है. तो यहाँ पर जब भी हम इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज में एड्स की बात करते हैं, तो एड्स को डायग्नोसिस करते हैं विथ एलाइजा. एड इज बीइंग डायग्नोस्ड by ELISA. Enzyme-linked immunosorbent assay. It's the enzyme-linked immunosorbent assay. Basically, ELISA कैसा होता है? It's a small square rectangular shape का एक प्लास्टिक का रेक्टेंगुलर शेप का सब्सटेंस होता है जिसमें बहुत सारे वेल्स होते हैं. इट्स एग्जैक्टली 96 वेल्स होते हैं जिसमें हम ये रिएक्शंस करते हैं. एलाइजा इज आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ डिजीजेस, बट अगर एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट करना है, डायग्नोस्ट करना है, तो वी विल गो फॉर द एलाइजा, एंड द फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा इज enzyme linked immunosorbent assay. It's the enzyme linked immunosorbent assay. This is the test which we do. Yes, ELISA. ये भी पूछा जाता है कि which test is used to diagnose your HIV viral infection, that is AIDS. It's being diagnosed by ELISA. Okay, ELISA के अलावा वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी करते हैं. Anyone, what is वेस्टर्न ब्लॉटिंग?
साउदर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न. यस, ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगी आपको जब भी हम बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे, वहां पर ये चैप्टर मैं ही पढ़ाने वाली हूँ, वहां पर हम डिस्कस करेंगे. बट यू शुड रिमेंबर कि अलाइजा के साथ हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी यूज करते हैं एज अ डायग्नोसिस टूल फॉर योर पेशेंट्स, एड्स पेशेंट्स. तो बहुत सारे प्रोग्राम्स रन किए गए इसको कंट्रोल करने के लिए और बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है. नैको, नैको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एनजीओज. नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन आपके एनसीईआरटी में लिखा है, आप वहां से इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हो. नैको एंड एड्स एंड एनजीओज, दे वर्क टुगेदर. नाउ after this AIDS, the another deadly disease which is affecting a tremendous number of people, millions of people every year throughout the world infect kar raha hai, and that is your cancer. Now we will read in detail about the cancer. Appropriate term for the grafting of tissue organ between the individual of different species is known as allograft, isograft, xenograft or transgraft. ये options दिया हुआ है. Two different species. Yes, Devki, you are absolutely correct. It's the xenograft. तो ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं. Which of the following is an autoimmune disease? ये भी क्वेश्चन आया है. Muscular dystrophy, Gaucher arthritis, rheumatoid arthritis या Tay-Sachs disease. ये your rheumatoid arthritis. Okay? तो ये भी क्वेश्चन आया है. मैंने उस दिन बोला था कि नीट में एक ये माल्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था. म्यूकोसा एसोसिएटेड lymphoid tissues. देखो उससे क्वेश्चन आया है. माल्ट constitute about dash% of the lymphoid tissue in your body. How much? 20%, 70%, 10% or 50%? Yes, Rohit, absolutely correct. It's the 50%. 50%. तो क्वेश्चंस आते हैं बच्चा, तो यू हैव टू बी क्लियर. अभी देखो एम्स का ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट आया है. व्हाट डज टी स्टैंड्स फॉर इन डीपीटी वैक्सीन? What does T stands for in DPT vaccine? Tetanus. Tuberculosis, typhoid, trachoma और tetanus. तो हमें पता होना चाहिए ना. अभी जैसे एक ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट देखती हूँ इसका आंसर आप लोग क्या देते हो. Common cold is not cured by antibiotics because it is caused by a virus, caused by a gram-positive bacteria, caused by a gram-negative bacteria, not an infectious disease. Why antibiotics are not acting against or is not be common cold is not cured by antibiotics? Because it's a viral disease. Why? It's an infectious agent, but it is caused by a virus. तो virus जो होते हैं वहाँ सेल वॉल होते ही नहीं है. मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो हमारे होते हैं, पेंसिलिन वगैरह, वो सब हमारे सेल वॉल पे एक्ट करता है. एंड क्यों एंटीबायोटिक नहीं देते हैं? एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस. देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन था बट बच्चे इस क्वेश्चन में गलतियां कर देते हैं. ओके देखो ये AIPMT का किसी ईयर का क्वेश्चन है. ग्राफ्टेड किडनी may be rejected in a patient due to passive immune response, innate immune response, humoral immune response या फिर cell mediated immune response. CMI, cell mediated immune response. Cell mediated immune response. ऐसे पढ़ना है कि जब भी हम घर में पढ़ते बैठे तो हमें लगा हाँ ये हमें सब अच्छे से आता है और हम इसका सारा क्वेश्चंस कर पा रहे हैं. ठीक है. Now the another disease that we have to learn is your, अभी हमारा बोर्ड भी ड्राई हो गया. ठीक है. इट्स योर कैंसर. कैंसर यू ऑल नो कि हमारा जो नॉर्मल सेल ग्रो करता है उसका एक डेफिनेट साइज होता है कि वो इतना ही ग्रो करता है और उसके बाद उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है. बट जो हमारा कैंसर सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शो करते हैं. अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं दे हैव टू ग्रो
in a particular size. उनका एक size है. The size of a cell is determined by the nucleocytoplasmic ratio. और फिर उनका growth जो है वो रुक जाता है, inhibit हो जाता है, and that is known as contact inhibition, which is an important characteristic of a normal cell. So normal cell का important characteristic है normal cell कि जब भी वो कांटेक्ट में आते हैं नियर बाय सेल्स के तो उनका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज कांटेक्ट इनहिबिशन. Contact inhibition, that means because of the contact with the nearby cells the growth is inhibited, the growth is stopped. तो कैंसर जो हो रहा है वहां पर अनकंट्रोल्ड proliferation of the cell हो रहा है without differentiation. सेल कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है, proliferate कर रहा है, but differentiation नहीं हो रहा है, and that is your uncontrolled growth. Uncontrolled growth का मतलब क्या हुआ? Proliferates but not differentiating. But not differentiating. In other words, you can also say कि ये जो contact inhibition जो कि normal cells में होता है ये यहाँ पर नहीं हो रहा है. जो this property ये जो है cancer cells have lost this property of contact inhibition, and because of that only they undergo uncontrolled growth. So one of the important reason for uncontrolled growth of some of the cells is the loss of the contact inhibition. लॉस ऑफ द कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, ये जो हमारा फैक्टर है जो नॉर्मल सेल्स में देखने के लिए मिलता है वो कैंसरस सेल्स में नहीं है. उसने ये जो है वो लॉस कर दिया और जिसकी वजह से कैंसरस सेल्स का नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो रहा है. दीज सेल्स प्रोलिफरेट इन एन अनरेगुलेटेड मैनर, क्योंकि प्रोलिफरेट होके उनको डिफरेंशिएट होना था, बट ये प्रोलिफरेट कैसे हो रहे हैं? unregulated manner. कोई भी regulation नहीं है. They are not being regulated by the genes or they are not being regulated by the system of the body. So they are unregulated. So the two words which are most appropriate for the cancer cell is that they are uncontrolled, uncontrollable, and they are unregulated. ठीक है? Okay. Now, ये कैंसर सेल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. कि ये किधर हो रहे हैं, कौन से टिश्यूज में हो रहे हैं, कौन से सेल्स में हो रहे हैं, वो एक्टोडर्म को इफेक्ट कर रहे हैं या फिर वो मेसोडर्म को इफेक्ट कर रहे हैं या फिर वो ब्लड के सेल्स को इफेक्ट कर रहे हैं. डिपेंडिंग अपॉन दीज क्राइटेरिया योर कैंसर इज डिवाइडेड इनटू मेजर टाइप्स ऑफ कैंसर, दैट इज योर carcinomas, sarcomas and leukemia. So they are the major types of the cancer. So cancer cells, cancer is of three different types. One is your carcinomas. We are talking about types of cancer. Carcinomas, I will talk about कि carcinomas क्या होते हैं. After carcinoma is your sarcomas, and after sarcomas the third one is your leukemia. Sarcomas, they are basically that this type is being derived from your epithelial cells. ये जो कैंसर होता है कार्सिनोमास हम ऐसे कैंसर्स को बोलते हैं जो कि एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होता है. एपिथेलियल सेल से जो कैंसर फॉर्म होता है दे आर नोन एज कार्सिनोमास. फॉर एग्जांपल योर स्किन कैंसर, योर ब्रेस्ट कैंसर, these are your carcinomas. That means they derive from epithelial cells. Derived from epithelial cells.
The another one is your sarcomas. Sarcomas cancer is basically related to the connective and the muscular tissues. They are related to connective and muscular tissues. Connective and muscular tissues. तो एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? अगर हम सार्कोमास की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू से ओरिजिनेट हो सकता है, तो हम क्या बोल सकते हैं? दे आर द कैंसर ऑफ द बोन्स, दे आर द कैंसर ऑफ द कार्टिलेज, दे आर द कैंसर्स ऑफ द लिम्फोइड टिश्यूज, दे आर द कैंसर्स ऑफ द मसल्स, हम बोल सकते हैं. सो सार्कोमास, ये वर्ड सार्कोमा वर्ड हम यूज करते हैं ऐसे कैंसर के लिए जो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द कनेक्टिव एंड द मस्कुलर tissues. And the third one is your leukemia, that is abnormal increase in the white blood count. White blood cells का जो count है उसका abnormal increase is known as leukemia. Leukemia is also known as blood cancer. ठीक है, तो एबनॉर्मल इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि बोन मैरो जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज अमाउंट में हमारे WBCs को बना रहा है. एंड ल्यूकेमिया इज मोस्ट कॉमनली नोन एज द ब्लड कैंसर. तो ल्यूकेमिया क्या होता है? आर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इंक्रीज, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द number of white blood cells. Abnormal increase in the number of white blood cells. That means white blood corpuscles due to their increased formation in the bone marrow. And to get out of this type of cancer, leukemia, you have to go for the bone marrow transplantation. आपने ये सुना होगा, बहुत सारे मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं bone marrow transplantation. So this is your leukemia. तो leukemia हम वर्ड उसके लिए यूज करते हैं. Carcinomas का simplest example क्या होगा? It's basically the skin का कैंसर हो सकता है, breast का कैंसर हो सकता है, brain का कैंसर हो सकता है, lung का कैंसर हो सकता है. They all are known as carcinomas. Example: skin, brain, lungs, sarcomas, bone, cartilage, tendon, muscles, and your leukemia is increase in the number of WBCs. Now, these cancers are also broadly classified into two major types. दो तरह के cancers होते हैं. One is your benign and the other is your malignant. Benign cancer, they affect only a certain tissues or the organ. Benign cancer ऐसे cancers होते हैं, they remain confined to an affected organ. अगर किसी एक जगह हुआ है तो उधर ही confined रह जाते हैं, they can't move. बट जो हमारा malignant cancer होता है, it spreads to the other organs of the body also, and because of that only it's considered more dangerous. Majority of the time the exact word for the cancer is used for the malignant cancer and not for the benign cancer. Benign को हम ट्यूमर भी बोलते हैं. It can be removed and can be cured. सर्जरी से हम उसको रिमूव कर सकते हैं. It only affects a certain organ. It is not capable of moving or spreading the other organs of the body. नहीं affect करता है. It remains confined to the site of the infection. And its effect is also limited. बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करता है benign cancers. And it is also non-cancerous. मैंने बोला हम इसको non-cancerous भी consider कर सकते हैं, but malignant ये ज़्यादा खतरनाक है, ये ज़्यादा problematic है because it's spread to the other organs of the body also. Other organ को भी affect करता है. Usually इसका spread जो होता है वो जो होता है वो बहुत rapid होता है, but initially
जब ये इन्फेक्शन स्टार्ट करता है तो हम उसको लेटेंट फेज बोलते हैं, वो बहुत स्लो होता है. यू कांट इमेजिन कि ऐसा कुछ हमारे बॉडी के साथ हो रहा है. सो बेसिकली वो जो लैटेंट फेज है वो बेनाइन कैंसर में नहीं होता है, बट ये जो मेलिग्नेंट कैंसर है इसका एक छोटा सा फेज होता है, लैटेंट फेज होता है, जहां ग्रोथ बहुत स्लो होती है और कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखता है, कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखता है. तभी कहते हैं कि in order to come out of the cancer disease, it's very important to recognize or to determine it early stage. अर्ली स्टेज पे हमें पता चल जाना चाहिए. तो जो ये लैटेंट फेज होता है हमारे मेलिग्नेंट कैंसर ट्यूमर्स का, वो क्या होता है, वहां पर इनका ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो होता है और वो स्लो होता है और सिम्टम्स कोई भी नहीं दिखते हैं. बट उसके बाद जैसे ही वो लैटेंट फेज से बाहर निकलता है वो रैपिडली स्टार्ट करता है डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द वेरियस पार्ट्स and affecting other organs and the surrounding tissues as well. So benign and malignant, these are the two types of, and this malignant tumors are also known as metastasis because it's spreading. So the simplest is benign, remains confined to an infected organ, spreads from an infected organ to other part also. Malignant tumors are known as metastasis. The cancer metastasis. The cancer due to malignant tumor is known as metastasis. Okay? टाइप ऑफ कैंसर हमने पढ़ लिया. हमें ये भी पता चला कि कैंसर कैसे होता है, ड्यू टू अनरेगुलेटेड एंड द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स. तो यहाँ पर क्या होता है, अगर सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है, बहुत बड़े साइज में ग्रो हो रहा है, तो जितने भी अंदर के सेल ऑर्गेनल्स है ना, वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते. इनके ये सेल जो ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसा मास ऑफ सेल होता है विच हैज मोर नंबर ऑफ लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स इसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं एंड देयर इज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये दूसरे सेल्स को इफेक्ट करते हैं. तो एक तो रीजन था ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और दूसरा था कि ये इतने ज्यादा ग्रो करने लगते, इतना ज्यादा प्रोलिफरेट करने लगते हैं कि देयर इज अ फाइट अमॉन्ग विथ देम. नॉर्मल सेल्स इसके लिए फाइट करते हैं इनके साथ फॉर द न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन स्टारवेशन में हमारे नॉर्मल सेल्स जो हैं वो डाई करने लगते हैं. अगर न्यूट्रिशन स्टारवेशन होगा तो हमने डार्विन का भी थ्योरी पढ़ा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो यहाँ पर जब व्हेनेवर देयर इज fight between the cancerous cells as well as the normal cells for the nutrition, तो nutrition deficiency में, nutrition starvation में हमारे normal cells भी kill होने start होने लगते हैं in case of the cancer. Okay, there are many reasons, there are many causative reasons for cancer. Cancer can be caused due to physical, chemical, as well as biological agent. Yes, some of the viruses are also responsible for causing the cancer. So physical, chemical, as well as biological, ये तीनों ही agents responsible होते हैं for causing cancer. Physical, chemical, your biological agents. Okay? Physical, that means exposure to the radiations, that also comes under physical irritants. For example, ये जो कश्मीर के लोग होते हैं, ये एक कांगड़ी जैसी चीज यूज करते हैं जो थोड़ा गर्म होता है और उसको वो अपने एब्डोमेन में रखते हैं. तो वो फिजिकल कांटेक्ट की वजह से they are also a reason for causing the cancers in those
people. एंड फिजिकल में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, एक्सपोजर टू द रेडिएशन, बहुत लोग वो तंबाकू खाते हैं, टोबैको, दीज ऑल कम्स अंडर द फिजिकल. तो फिजिकल में हमारे बहुत सारे चीजें हैं, एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट ऑल्सो, हैवी स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, ये सब आ जाएगा आपका फिजिकल. केमिकल्स, the chemicals which are considered to cause the cancer is your known as carcinogenic agents. कार्सिनोजेनिक एजेंट्स ये होते हैं. अगर पूरे टाइम आप सन पे भी बैठे रहो ना, तो सन में भी हार्मफुल रेडिएशन है, दे कैन ऑल्सो बी अ रीजन. तो वो स्किन के कांटेक्ट से हो रहा है, तो वो आपका फिजिकल में आएगा, वो आपके फिजिकल में आएगा. तो जब भी हम केमिकल्स की बात करते हैं, तो केमिकल्स में देयर आर सर्टेन केमिकल एजेंट्स व्हिच आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग द कैंसर एंड दे आर कंसिडर्ड एट द कार्सिनोजेनिक एजेंट्स आल्सो. The third one is the radiation, exposure to the radiations. ये radiations कैसे हो सकते हैं? एक्सरे हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रेज हो सकता है, गामा रेज होता है. इसलिए हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि वेरी फ्रीक्वेंटली वी नॉट हैव टू इनकाउंटर द रेज ऑल्सो. एक्सरेज वगैरह, MRI वगैरह, सिटी स्कैन रेगुलर नहीं कराना चाहिए. देयर कैन बी कैंसरस टू, दे कैन ऑल्सो डैमेज द टिश्यूज एज वेल. तो बहुत सारे जो हमारे radiations hai, they can also be a cause for the cancer. Biological agents, yes, there are certain viruses which are also capable of causing the cancer, as well as abnormal hormonal secretion. Listen very carefully. Biological mein abnormal hormonal secretion can also be a reason of cancer. So किस किस चीजों से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एज वेल एज हमारे इस कैंसर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेट मी डिस्कस. कैंसर से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि कौन कौन से थेरेपीज हम यूज कर सकते हैं इससे रिकवर करने के लिए. यस, कीमोथेरेपी होता है, रेडिएशन होता है, इम्यूनो भी आज के डेट में हम यूज कर रहे हैं, बट combination is the most effective way. Nowadays we are targeting for the drug, ये targeted drug delivery. टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, इसका मतलब क्या होता है वो हम यूज करते हैं. द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड रिलेटेड टू द कैंसर, कि स्टेजेस ऑफ कैंसर, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेजेस ऑफ कैंसर, स्टेज 1, स्टेज 2. आपने ये सुना होगा कि लोग पूछते हैं किस स्टेज में है. कहीं नहीं सुना होगा तो मूवीज में भी ऐसा दिखाता है, वो प्रिडिक्ट करते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4. जब भी बोलते हैं इट्स इन स्टेज 4, ओह इट्स वेरी डेंजरस, नाउ we can't save the person. Yes, I will explain you कि ये stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 क्या होता है, इसको हमने ये stages का नाम क्यों दिया है. जैसे हमने एड्स के लिए डायग्नोसिस पढ़ा, तो वैसे ही यहाँ पे कैंसर के लिए भी डायग्नोसिस होता है. जैसे मैंने बोला कि देख के कोई नहीं बता सकता, देख के कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता, कि हाँ वो हमारे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि अब मुझे इसको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ हार्ड लंप इन द ब्रेस्ट, देन यू हैव टू गो फ्रॉम द मैमोग्राफी. इन इंडिया बेसिकली अगर देखा जाए तो मेल में इट्स बेसिकली द माउथ एंड द थ्रोट कैंसर एज वेल एज द लंग कैंसर, क्योंकि टोबैको और स्मोकिंग की वजह से ये दो कैंसर्स मोस्टली पाए जाते हैं. बट इफ यू कंसिडर द फीमेल्स, देन the most common type of cancer that is being found in the female is the breast cancer as well as the uterus cancer, cervicus cancer, जिसके लिए हम pap smear लेते हैं for the testing. So there are various things. हम histological that means the pathological test होता है जहाँ पर हम blood, urine, stool ये टेस्ट करते हैं. histological टेस्ट का मतलब होता है on the tissue level. आपने एक वर्ड सुना होगा biopsy, सुना है. जब भी किसी भी पेशेंट में, कैंसर पेशेंट में शक होता है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को कि ये इन्फेक्टेड है, यहाँ पर ट्यूमर है, तो वी रिकमेंड टू टेस्ट द बायोप्सी. बायोप्सी में क्या होता है, वी टेक द स्मॉल टिश्यू फ्रॉम दैट इन्फेक्टेड एरिया, उसका थिन सेक्शनिंग करते हैं, नॉट विद आवर हैंड. देयर आर मशीन्स व्हिच इज यूज्ड फॉर द थिन सेक्शनिंग ऑफ द टिश्यूज. उसकी स्टेनिंग की जाती है एंड देन दोज टिश्यूज आर बीइंग ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेदर, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड अगर ग्रोथ है तो यस इट्स अ ट्यूमर. बट अभी कैसे पता चलेगा कि ये ट्यूमर बेनाइन है या मैलिग्नेंट है, उसके लिए और भी बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं. सो फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स,
different infected parts also there are different types of tests. जैसे मैंने आपको बताया, अगर ब्रेस्ट में हार्ड लंप जैसा कुछ दिखता है तो वी गो फॉर द मैमोग्राफी. फिर अगर कोई इन्फेक्टेड ऑर्गन है जैसे लंग्स है, लिवर है, तो हम उसका क्या करते हैं, हम बायोप्सी करके टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं, देखते हैं टिश्यूज कैसा है. फॉर एग्जाम्पल अगर सर्वाइकस में होता है तो वी टेक अ स्मेयर, जैसे अभी आपने देखा होगा कोविड के लिए अगर हमें सैंपल देना होता है तो वो एक स्वैब लेते हैं एंड दे टेक इट फ्रॉम आवर नोज नॉस्ट्रल्स से लेते हैं. तो वैसे ही पैप स्मेयर इज द स्मेयर दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वाइकल ऑफ द फीमेल पेशेंट. सो डिफरेंट ऑर्गन जो कि इफेक्टेड है उसके लिए भी हमारे अलग अलग टेस्टिंग है. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी ये डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई, मतलब अगर शक हो गया कि हाँ ये सिम्टम्स है तो ये डिजीज है, बट आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है. देयर आर मेनी डायग्नोस्टिक टूल्स दैट आर बीइंग यूज्ड. और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कैंसर अगर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो देन वी विल स्टार्ट ड्रग एडिक्शन. यस, देयर आर वेरियस ड्रग्स आल्सो जिसकी वजह से लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, वो कैसे हमें हार्म करते हैं, इफेक्ट करते हैं. एंड यस, वेरियस क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. अगर एड्स की बात करो, ऑटो इम्यून डिजीज की बात करो, कैंसर की बात करो, क्वेश्चंस नीट में आते हैं. तो यू हैव टू प्रिपेयर. इस टेस्ट में आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर नहीं आ रहा है, सर ने मुझसे पूछा था, मैंने बोला अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस टेस्ट में नहीं आएगा, बट नेक्स्ट डेट जो भी संडे को होगा, नेक्स्ट संडे में होगा, उसमें ये चैप्टर जरूर आएगा. तो रीड इट. ओके, तो see you all in the next class. We will complete this drugs as well as the cancer.